વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમોકારો, સૌવપાવપણાસણો, સબપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણં ચ સવ્યેસિં, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. Good જય job. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ બધા ક્વેશ્ચનો તૈયાર રાખજો. પ્રતાપજી પેલો ક્વેશ્ચન નીલુફર બેન નો આવેલો છે. ઓકે બોલો નીલુ. હેલો. હલો, હા હા, બોલો. સંભળાય છે. ગઈકાલે એમાં બ્રેકઅપ થાય છે નીલુ. તો You're breaking up. બેઠા Nilufer, સંભળાય? you're breaking You up. can turn off your video. Or take off your earphone. હેલો. હલો, હા. Okay. હવે સંભળાય? Yes. હા, હવે okay. સંભળાય. ઓકે. ગઈકાલે અમે હું ને મારી ડોટર ડિસ્કસ કરતા હતા. તો સપોઝિંગ આપણે બીચ પર બેઠા હોઈએ ને એકદમ શાંતિ અનુભવીએ તો એ અનુભવ નીલુફરનો છે કે એ અનુભવ પ્રજ્ઞાની લાઈટમાં નીલુફરનો છે? હા, હા. તમે ક્યાં બેઠા હો તમે કહો છો? દરિયા પર બેઠા હોઈએ આપણે શાંતિથી પર બેઠા, બરાબર. ને એકદમ પીસ લાગતી હોય ને એનો જે આનંદ અનુભવીએ. સમજી ગયો, બરાબર છે. એટલે કે આપણે દરિયા પર બેઠા છીએ, દરિયાનું એક કુદરતી વાતાવરણ છે, ઠંડી હવા આવે છે અને એકદમ શાંતિ અનુભવાય છે. તો કે આ આનંદ આત્માનો છે એવું તો પૂછવા માંગો છો ને? હા, એટલે એ આત્માની લાઈટમાં છે. હું એને એવું કહેતી હતી કે એ આત્માની લાઈટમાં આપણે એ આનંદ અનુભવીએ છે. ના, એટલે નીલુફર સારો પ્રશ્ન છે, સમજાવું તમને, આખી વાત કરું. આ જે પૂતગલના સુખોનું જે ડિવેલ્યુએશન કરવાનું છે એ સમજવા માટે આ પ્રશ્ન બહુ સારો કર્યો તમે. દાદા ભગવાન લગભગ 83માં બોરીવલી પાસે, ત્યાં કોરા કેન્દ્ર પાસે મહાત્માને ત્યાં હતા, ત્યાં રોકાયા હતા 2-3 દિવસ. અને પછી સવારના ટાઈમમાં નાસ્તો કરી અને પછી અમે બાલ્કનીમાં બેઠા હતા. બાલ્કની તો નાની જ હતી, 3 ફૂટની. દાદાની ખુરશી મૂકેલી અને અમે 2-3 જણ બેઠા હતા. એટલે પેલો દરિયાનો સરસ પવન આવે, દરિયો દેખાય નહીં પણ ઠંડો પવન આવે એટલે ઘર કરતા બહાર બધાને સારું લાગે. એ જમાનામાં એસી હતા નહીં એટલે બધાના મોઢા પર આમ રોનક દેખાય. પછી દાદાએ ધીરે રહીને વાત મૂકી કે આ પૂતગલના સુખ જેટલા ચાખીએ છે ને
તે પૂતગલના બધા સુખનું રીપેમેન્ટ કરવું પડે, રીપે કરવા પડે. પૂતગલના સુખ જેટલા ચાખ્યા એનું રીપે કરવું પડે. એટલે કોઈને વાત તો સમજાય નહીં. પછી દાદાએ ધીરે વાત કરી કે આ ઠંડો પવન આવે છે, બોડીને ઠંડક લાગે, દેહને ઠંડક લાગે એટલે સારું લાગે. હવે આ દેહને સારું લાગે અને એ સુખ પોતે ચાખે, ઓ મને બહુ સારું લાગે, બહુ ઠંડક લાગે, બહાર બેસવા જેવું છે, તો એ પૂતગલનું સુખ ચાખ્યું કહેવાય. અને આવી રીતે પૂતગલના સુખ ચાખ્યા હોય તો પછી એનું પાછળથી રીપેમેન્ટ કરવાનું આવે. પછી એનો આગળ બીજો દાખલો આપ્યો કે આ ખાવાનું, ગળ્યું ખાવાનું બહુ ભાવતું હોય કે ગળ્યું દબાઈ દબાઈ કરે, ખા ખા કરે, એટલે પછી ઉંમર થાય એટલે દાંત પછી દુખે. એટલે કે ત્યાં આ જે શરૂઆતમાં કે ગળ્યું દબાવ્યું તો હવે દાંત દુખે, પેઢા દુખે, એટલે કે આ રીપેમેન્ટ આવ્યું. તો કે જ્યારે એને સ્વીટ ખાધી ત્યારે પૂતગલનું સુખ ચાખતો હતો કે મને મજા આવે છે, મને સારું લાગે છે, મને ગમે છે, મને ભાવે છે. તો કે ડિલિવરી સ્વીકારી માટે પછી પાછલી ઉંમરમાં એ રીપેમેન્ટ કરવાનું આવે. કોઈ માન આપે, આવો આવો કે, કોઈ માન આપે એટલે સારું લાગે એનો વાંધો નથી, 15 એ માન ચાખવાની ટેવ પડી ગઈ એટલે એનું સુખ લે, मान भरतान मले. जी पार्डन, आज हिंदी का आज सैटरडे है ना, तो हिंदी की बात करने में वो हिंदी में बोलेगा. अरे हारू हाँ, मैं तो सॉरी सॉरी मैं भूल गया. हाँ हाँ हिंदी में बात करेंगे. हाँ, हाँ. इतनी बात मधु भाई आपको तो समझ में आ गई क्या बात? फुल्लर साहब को समझ में, रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना हिंदी में. गंगाधरण समझ में आ गया कि हिंदी में रिपीट करना पड़ेगा? आ गया. मैं शॉर्ट में बता दूं, इनका प्रश्न था नीलूबेन का कि समुद्र के पास जाके बैठे, ठंडी हवा आती है और भीतर अच्छा भी लगता है, तो ये सुख जो आया, ये आत्मा का सुख, ये सुख किसने चखा? सब भीतर खड़ा तो होता है ना. इसके ऊपर से बात की. अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो कि समुद्र बीच पे जाके बैठते हैं, ठंडी हवा आती है, हमें अच्छा भी लगता है, तो ये सुख किसका है? तो ये पूतगल का सुख है. और ये फाइल नंबर 1 को अच्छा लगता है और फाइल नंबर 1 से अलग रहते हैं, तो अपनी सीट पे बैठे, तो अपनी सीट पर बैठने से फिर वो आत्मा का सुख खुला होता जा रहा है. तो इसके प्रश्न आया तो दादा भगवान की एक बात मैंने बताई कि दादा भगवान बॉम्बे में थे, तो बोरीवली एक महात्मा के वहां रहे थे. तो सुबह में ब्रेकफास्ट करके बाहर बालकनी में जाके बैठे और बालकनी में से ठंडी हवा आ रही थी. तो घर में उस समय तो एसी नहीं था, तो घर में तो वो सफोकेशन लगता है ना ह्यूमिडिटी की वजह से. तो बाहर जाके बैठे, सबके फेस पे आनंद दिखाई दिया. तो दादा बुआ ने धीरे से बताया कि पूतगल का सुख हम जितना भी चखते हैं वो सबका बाद में रीपेमेंट करना पड़ेगा. इट्स लाइक यू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, तो आपको रीपेमेंट करना पड़ता है. अभी बात कितनी सुंदर थी. दादा भगवान बताते हैं कि ऐसे ठंडी हवा आती है तो हमें क्या रहता है कि ये मारू न होय,
ये मेरा सुख नहीं है, ये आपको ये संजोगों के हिसाब से सुख लगता है, मैं वो तो आपको लगता है, मैं तो शुद्धात्मा हूं, आपसे अलग हूं। तो ये पुद्गल, ये बाहर के सुख सातावेदीय संजोगों के हिसाब से पुद्गल को अच्छा लगता है, मगर वो पुद्गल को अच्छा लगता है, वो डिलीवरी नहीं लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है इस ईश्वर से डिलीवरी नहीं लेते हैं, तो आपने वो सुख चखा नहीं, आपने में शुद्धात्मा, तो आपने वो सुख चखा नहीं, तो आपको रीपेमेंट करने का नहीं आएगा। और जाके बैठे थे आज समुद्र पे, बीच पे जाके बैठे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया। जब भी स्कोप मिले जाने जैसा है। तो ये फाइल नंबर 1 को हो रहा है, वो जागृति नहीं रही, तो बाद में कभी भी आपको ये सुख जो चखा उनका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो पुद्गल के जितने भी सुख है, जितने भी सुख आप चखते हैं, वो सबका रीपेमेंट करना पड़ता है। कि दादा की मेन बात इसमें ये थी, पहले ज्ञान मिलने से पहले, ये दृष्टि, ये ज्ञान दृष्टि मिलने से पहले सारे जगत के लोग और हम सभी भी औद्गलिक माने हुए विनाशी सुखों के पीछे पड़े थे। अब ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, अपना जो दरअसल सुख है, रियल हैप्पीनेस, ब्लिस, इनका अनुभव हो गया। तो ये अनुभव हुआ तो पक्की श्रद्धा बैठ गई। तो श्रद्धा बैठ गई तो अभी फाइल नंबर 1 को सुख के संजोग आएंगे। अच्छा खाना मिलेगा तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? डेफिनेटली खाएंगे, मगर वो फाइल नंबर 1 सुख लेगी हम शुद्ध आत्मा। तो फाइल नंबर 1 की डिलीवरी, फाइल नंबर 1 की पोस्ट हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये सुख हमने चखा नहीं। तो क्या हुआ कि वो बीच पे गए, समुद्र की ठंडी हवा आई, अच्छा भी लगा, मगर फाइल नंबर 1 को अच्छा लगा, मैं शुद्धात्मा हूं, तो आपको रीपेमेंट करने का नहीं आएगा। और आपका खुद का जो स्वभाव है, खुद का जो परमानेंट ब्लिस है, वो स्वभाव खुला होता जाएगा। तो खुद के आत्मा के सुख का अनुभव, आत्मा के सुख के अनुभव की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नीलूबेन क्लियर हुआ? યસ, એક બીજો પ્રશ્ન છે, પૂછું? હા, પૂછી જ લો, હજી તો શરૂઆત જ છે ને. ઓકે, બીજું એક ડિસ્કશન એ હતું મારી ડોટર સાથે કે આજે જ્ઞાન મળ્યા પછી જે ઉદાસીનતા વર્તે છે ઘણીવાર, એટલે ઘણીવાર નહીં, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ, પણ આપણે આરતીમાં પાછા ગાઈએ બી છીએ કે ઉદાસીન વૃત્તિ વહે ને કારણ મોક્ષ સેવે. બરાબર. એટલે આ ઉદાસીનતા એટલે કેવી વસ્તુ છે? આ ઉદાસીનતા આખી જુદી રીતે વાત કરી છે. રાઈટ. ઉદાસીન એટલે શું કે આ સંસારી સુખો માટે ઉદાસીનતા. કેમ? તો કે આત્માનું સુખ ચાખ્યું એટલે સંસારના સુખો, જેમ સ્વીટ ખાધા પછી ચા ફીકી લાગે, એવી રીતે ફીકા લાગે. એટલે ફીકા લાગે એટલે એમાં રસ ના પડે, રસ ના પડે એટલે એમાં ઉદાસીનતા વર્ત્યા કરે. આપણે કોઈને ત્યાં લગ્નમાં જવાનું હોય તો હવે આ શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું એટલે કપડા બપડા પહેરવા તૈયાર થવું, જવું, એટલે અંદર પેલી ઉદાસીનતા હોય કે આ ક્યાં ટાઈમ બગાડવો, છતાંય ફાયદો નિકાલ કરવા જવું પડે. રાઈટ. તો કે આત્માનું સુખ ચાખ્યું હોય એને લઈને આ બહાર બધે ઉદાસીનતા વર્તે. ઓકે. એટલે ભાઈ શું થાય કે જગતના બધા સુખો માટે એ નિષ્પૃહ રહે. નિષ્પૃહ રહેવાનું. ઓકે. એટલે કે વિનાશી સુખો માટે એ નિષ્પૃહ રહે, એટલે કે એની ઉદાસીનતા રહે. રાઈટ. અને આપણા પોતાના સ્વાભાવિક સુખ માટે એ સસ્પૃહ રહે. એટલે પેલા વિનાશી માટે નિષ્પૃહ
અને પોતાના માટે સસ્પૃહ. તો એટલે મારી દાદા ભગવાન daughter- શું કહેતા હતા હમ. કે અમે કેવા હઈએ તો કે અમે સસ્પૃહ નિસ્પૃહ હઈએ. સસ્પૃહ નિસ્પૃહ, અમે તારા આત્મા માટે સસ્પૃહ આત્મા માટે સસ્પૃહ. ઓકે. અને બીજી બધું તારો જે વ્યવહાર છે એ બધા ભાગમાં આખો અમે નિસ્પૃહ. हिंदी हिंदी में भरतान जी हाँ भूल गया सॉरी Sorry, सॉरी. sorry. तो हम आपके आत्मा के लिए मीन्स रियल के लिए हम सस्पृह है. आप किस प्रकार से आगे बढ़े, आपकी जागृति बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान की पूर्णाहुति की ओर धीरे धीरे इसी वर्तमान दशा की प्राप्ति करो, इसके लिए हम सस्पृह है. और आपका व्यवहार है कि आपका बिजनेस है कि आपका जॉब में प्रमोशन वो सब है, तो कि व्यवहार की सारी बातों के लिए हम निस्पृह है. Right. मगर सिर्फ इतना ही नहीं बताया, आगे ये बताया कि ये जो पुद्गल की सारी बातें, पुद्गल के कनेक्टेड, फाइल नंबर 1 के कनेक्टेड जो है वो सब व्यवस्थित के अधीन है. तो जो व्यवस्थित के अधीन है वहां तो हमें क्या करने का, हमें निष्क्रिय रहने का. और जो रियल का है वहां 5 आज्ञा आती है, वहां पुरुषार्थ आता है, Okay. इसलिए वहां हम सस्पृह हैं. Right. Okay. जय. तो ये क्या है कि महात्माओं को उदासीनता भी लानी नहीं पड़ती है. ये उदासीन वृत्ति अपने आप को खड़ी हो जाती है. हम्म. पहले वृत्ति है ना, वो चित्त के साथ कनेक्टेड है, चित्त वृत्ति. तो पहले हमारा जो चित्त था वो सब जगह बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड. Right. तो क्या होता, सब जगह हमको यहाँ भी सुख लगता था, यहाँ भी सुख लगता था, यहाँ भी सुख लगता था, यहाँ भी सुख लगता था. कुछ अच्छा देखा तो वहां भी सुख लगेगा, कुछ अच्छा खाना मिला तो वहां भी सुख लगेगा, कुछ अच्छा मकान देखा तो वहां भी सुख लगेगा, अच्छी गाड़ी देखी तो वहां भी सुख लगेगा, मान मिला तो वहां भी सुख लगेगा, विषय का है तो वहां भी सुख लगेगा, पैसा मिला तो वहां भी सुख लगेगा. तो ये उनका चित्त वृत्ति सब जगह स्कैटर्ड थी. फिर जब ये दृष्टि प्राप्त हुई और भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो क्या हुआ कि उनको टेस्ट आया रियल हैप्पीनेस का, Right. कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमानंद स्वरूप हूं. वो परमानंद का थोड़ा सा टेस्ट आ गया. Mm-hmm. मगर एक बार शक्कर को चख लिया, फिर कोई शक्कर के बारे में कितनी भी बात करे उल्टी सुल्टी, तो उनको स्वीकार करेगा. अरे भाई मैंने खुद ने टेस्ट किया है, आप क्या बोलते हैं. Mm-hmm. तो ऐसे ये आत्मा के सुख का अनुभव हो गया. अभी बाहर के विनाशी सुख, जगत के सुख, पुद्गल के सुख कितने भी आएंगे, मगर हमारे लक्ष्य में रहेगा कि नहीं, सही सुख सच्चा मैंने जो चखा है वो है. Right. और इसलिए उसके प्रति उदासीनता रहती है. Okay. आया समझ में? Yes. हाँ हाँ. जी. जय. Yes. हाँ, मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, फिर एक ही प्रश्न में बहुत लंबा हो जाता है. अच्छा. जय और आपको सच्चिदानंद. डिटेल में जाना है तो मुझे प्रश्न कर लेना आगे. Okay. 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 जय सच्चिदानंद. जय श्री हतीम भाई. જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. આજ બપોરે હું જમવા બેઠો હતો હાથીમ, તો દાળમાં નમક ઓછું હતું. તરત બોલાઈ ગયું મારાથી કે દાળમાં નમક ઓછું છે. પછી તરત ધ્યાન આવ્યું કે દાદા એમ કહેતા કે જે જમવામાં આવ્યું હોય એ જમી લેવાય. હવે આ મારી એક સમજ આવી, તો મેં જાણવા માંગુ છું કે જ્યારે જમવા બેઠી ક્યાંય, તો આવું કઈ ભાવ થાય, નમક કે મોરું લાગે તો ત્યારે જમી લેવાય કે નમક માગાય, કઈ વાંધો નહીં એમ? ટેસ્ટ બાબત, પૂતગલનો ટેસ્ટ બાબતમાં.
દીપકન જે રિપીટ કરો ને, મને અવાજ બરાબર સંભળાયો નહીં. બોલ ફરીથી. એમનો અવાજ જાય થોડો થોડો ફાટે છે. બોલો હાલો. બોલો બોલો. ભરતજી, આજે બપોરે જમવા બેઠો હું, હા તો દાળ જમતો હતો તો મને નમક ઓછું લાગ્યું, એટલે તરત મેં મારાથી બોલાઈ ગયું કે નમક ઓછું છે, આપો ને. હા પછી તરત યાદ આવ્યું કે દાદા એમ કીધું છે કે જમવા બેઠો ને તો જે જમવાનું આવે ને એ જમી લેવું જોઈએ. હા તરત જ એ મુમેન્ટ પણ જીભાનમાંથી નીકળી ગઈ વાત. બરાબર. પણ હવે મારે એ જાણવું છે કે આવો તો સંયોગ બનતા જ રહેશે જીવનમાં, તો આવા સમયમાં સંયોગ આવે જમવા બાબતમાં ખાસ કરીને, તો એમાં જે આવો નમક હોય કે કાંઈ મીઠું નમક મતલબ ચા ખાંડે મોરી હોય તો માગીને મગાય કે ન મગાય કે એમને પી લેવાય એમ. હા બીજી વાર. હા બરાબર. पहला हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हाँ करना. सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में नहीं बोलता नहीं हूँ, नहीं हिंदी में. आप भरत ओके आनंद ओके बोलिए. सॉरी मैं रिपीट कर देता हूँ. हाँ सॉरी समझ गया. मैं हिंदी में प्रश्न बता देता हूँ. हाँ, हाँ, हाँ. नहीं जवाब दे दो, सीधा जवाब चले गया. अच्छा, ऐसी बात है हाँ कि आपने बताया कि आप खाने के लिए बैठे, नमक ज्यादा है, नमक कम है, हम्म तो दिखाई देता कि नमक कम है, तभी मांगने का कि नहीं मांगने का. हाँ एक ज्ञान दृष्टि मिली तो हमें मांगने का कि नहीं मांगने का. सबसे बड़ी बात यह है कि आप शुद्धात्मा है तो आप मांगने वाले भी नहीं है, नहीं मांगने वाले भी नहीं है. समझ में आया? हाँ. अभी दूसरी बात, ये जो फाइल नंबर 1 है वो व्यवस्थित के अधीन है, तो आपका मेन पुरुषार्थ कहाँ है कि देखने फाइल का. नंबर 1 मांग रही है या नहीं मांग रही है, वो देखने का है. बराबर. अभी दूसरी बात, दादा भगवान ने जो बताया कि हीरा ने कड़ी बनाया था, नमक ज्यादा था तो हमने थोड़ा पानी डाल दिया. हाँ 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 तो दादा भगवान का जो एडजस्टमेंट था ने, हाँ. वो उनकी खुद की एक दशा थी. अच्छा. उनको क्या था कि हीरा बा को दुख नहीं होना चाहिए. यस यस. उनको बोलेंगे तो उनको दुख होगा. दूसरा क्या था कि हमें किसी को भी उनकी गलती बतानी है, हमारे नजदीक के कोई है गलती बतानी है, तो कैसी गलती बताने की जो उनको खुद को नहीं दिखाई दे, ऐसी गलती बताने की. वो भी विदाउट प्रिजुडाइज, विदाउट ग्रज, विदाउट अभिप्राय, या सामान्य भाव से उनको करता देख के नहीं, हाँ हाँ नॉर्मल बता सकते. बराबर. ख्याल में ये दादा भगवान की दशा थी. पर हमारे लिए ऐसा व्यवहार तो हम लेके आए नहीं है. या तो जो बानी निकल जाती है कि नमक ज्यादा है, तो ये बानी जब निकली तो बनाने वाले को करता देखा, उनको दूषित देखा, वो सब क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया. अतिक्रमण हो गया. तो वो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए. ओके. तो बनाने वाले को शुद्धात्मा देखते हैं, उनको करता नहीं देखते, व्यवस्थित करता है, वो तो निमित्त है. इस तरह से वो हो गया तो अतिक्रमण का प्रतिक्रमण हो गया. तो लोग क्या समझते हैं कि हमने ज्ञान लिया है तो हमें बोलने का नहीं. हाँ. तो बोलना नहीं बोलना आपके हाथ में ही नहीं है. यस यस यस. और आप डिसाइड करें मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना, तो आप बोलने वाले हो गए. हाँ तो करता हो गया. एग्जैक्टली. और हमें जो ज्ञान मिला है वो संपूर्ण अकर्ता पद का ज्ञान मिला है. तो हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो दृष्टि मिली है, उसमें हमें रहने का है. बराबर. और मैं आपको बोलूंगा कि नहीं बोलना है, नहीं बोलने हाँ, तो वो नहीं हो सकता है, वो तो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे कुछ बोलने का नहीं. निकल जाएगी. हाँ सही बात, वो तो देखना है उस समय क्या करते हैं. बराबर. समझ में. जय सच्चिदानंद. और दूसरी बात बताऊं कि आपका हेलो, आवाज कट रहा है.
नहीं, ये प्रश्न आपका शुभ नाम हातिम भाई, हातिम। हातिम भाई। हाँ, हातिम भाई। ओ, हातिम भाई नो प्रश्न। हातिम भाई, अब दूसरी तरह से आपको बताओ कि व्यवहार में दृष्टि कैसी होनी चाहिए कि घर में भोजन करने के लिए बैठे और नमक ज्यादा आ गया, तो फर्स्ट स्टेप सामने वाले को, बनाने वाले को दोषित देखते हैं, और जब हम बनाने वाले को दोषित देखते हैं और कोई भी चीज देख के कोई भी बात निकलती है तो सामने वाले को दुख होता है। हाँ। इससे प्रातः विधि में हम जो भावना करते हैं, शक्ति मांगते हाँ। हैं, मेरे प्राप्त किसी वचन मत काया किसी का किसी भी जीव को किंचित मात्रा भी दुख दुख न हो। तो अभी वो भावना करते हैं तो वो बात उधर जागृति में आती है। हाँ बराबर, वो जागृति नहीं रही। तो ये जागृति में आएगा तो क्या होगा, आपकी वाणी ऐसे निकलेगी कि उनको दुख नहीं होगा। शब्द तो निकलेंगे कि नमक ज्यादा है, मगर दुख नहीं होगा। बराबर। मैं किसी के घर पे गया था, हाँ। भोजन करने के लिए बैठे, तो सब्जी में उसने वो नमक डबल डाल दिया था। तो वो भाई साहब जो बैठे तो उन्होंने खाया सब्जी, तो क्या बोला, उनकी धर्मपत्नी है तो क्या बताया कि लगता है कि आजकल नमक सस्ता हो गया है। समझ में आया। नॉट इन कंप्लेन फॉर्म के, ऐसा कुछ भी नहीं आपने ऐसा बना वैसा बना, उसकी वाइफ भी समझ गई कि ज्यादा क्यों गया होगा। बोलते नहीं तो वो निकाल दो, सब्जी निकाल दो, ये दूसरे। बराबर। कहने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। यस यस। हम किसी को भी अभिप्राय के साथ, या तो वो करने वाला है इस तरह से रहता है और हम उनको बात करते हैं ना, तो उनका ईगो हर्ट होता है, और हमारी सही बात भी उनको स्वीकार नहीं होती है। तो मेन क्या है, वाणी ऐसी होनी चाहिए कि उनको दोषी नहीं देखेंगे, तो उनका ईगो हर्ट नहीं होगा, और किसी का ईगो हर्ट, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होगा, तो आपको उस पे जाने के लिए वो ग्रीन सिग्नल देगा। यस यस यस। तो ऐसे करते करते जगत के सभी जीवों का ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो कोई आपको यहाँ रखेगा नहीं, कोई यहाँ नहीं रखेगा, तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। बराबर बराबर। ऐसा सिंपल है मोक्ष। सही बात है। क्लियर, समझ में आ गया? एकदम सरस, एकदम फर्स्ट क्लास। जय सच्चिदानंद, 100%। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई खरे। हाँ, जय बोलो, सच्चिदानंद भरत भाई। हाँ पूछिए पूछिए। जय सच्चिदानंद। एक क्वेश्चन था मेरा। दादाजी को हमने 14 लोक का नाथ कहा है, ठीक? हाँ, और फिर हम ये भी कहते हैं कि 24 तीर्थंकर के रूप में इकट्ठे उनका स्वरूप है दादाजी। हाँ, बराबर ना सर? बराबर। हाँ, और फिर भी हम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है सर? क्या ये डिस्चार्ज है कि आवरण है, जानते हुए भी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसा है कि दादा भगवान उनको 14 लोक के नाथ बोलते हैं। वो पता है 14 लोक का नाथ क्यों बोलते हैं? भाई 14 लोक के 14 पृथ्वी ऐसा कहते हैं। अरे 14 लोक है। अच्छा, ये ऊपर देवलोक, नीचे नरगति और मध्य में ये मध्य लोक, ये सब पृथ्वी और सब महाविदिक से वो सब। तो क्यों बोलते हैं ऐसा कि तीर्थंकर भगवान ये मनुष्य फॉर्म में सर्वोत्कृष्ट दशा है, उससे ऊपर की दशा हो नहीं सकती है। और
जो तीर्थंकर भगवान है उनको भगवान बोलते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, और वो भी अपने आप, विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, किसी की मदद के बिना या किसी के गाइडेंस के बिना। तो स्वयं बुद्ध बोलते हैं, स्वयं बुद्ध। तो अभी तीर्थंकर भगवान को 360 डिग्री ज्ञान हो गया, तो इगोइज्म नहीं रहा। तो इगोइज्म नहीं रहा तो ब्रह्मांड के मालिक हुए, मगर इगोइज्म रहा ही नहीं तो मालिक कैसे होंगे? समझ में? तो फिर दादा बाबा ने क्या बताया कि हमें ये काल के प्रभाव से हमें हुआ केवल ज्ञान 360 डिग्री, मगर 4 डिग्री डाइजेस्ट नहीं हुआ, 356 डिग्री पे आके अटक गया। तो वो 4 डिग्री का जो बाकी रहा, तो कुदरत ने क्या बताया कि तीर्थंकर भगवान तो ये ब्रह्मांड के स्वामी होते नहीं, ये संपूर्ण भगवान हो गए, तभी दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो ये ब्रह्मांड के मालिक अभी आप। समझ में? तो इस तरह से बताइए, इस तरह से हम 14 लोग के नाथ है। अभी आपका दूसरा प्रश्न है कि ऐसे 14 लोग के नाथ मिल गए, हमें परमात्मा मिल गए, तो फिर भी हम के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसमें कैसी बात है कि हम एक ज्ञान मिलने से पहले जो सब कुछ करते आए थे, जो लेके आए हैं पीछे का और करते आए थे, तो अभी शुद्धात्मा हो गए, तो अभी छोड़ने का, त्याग करने का तो रहा नहीं। तो जहां तक माल पड़ा है वहां तक वो सब चलता रहेगा। मगर दादा भगवान की बात जो समझती है, तो दादा भगवान ने क्या बताया कि हमारा ये जो भीतर के भगवान खुले हुए, भीतर दादा भगवान खुले हुए, और ये एम पटेल भी 356 डिग्री हो गए, तो ये जो प्योरिटी खुली हुई, तो सभी देवी देवताओं हम पे बहुत राजी है, और सभी देवी देवताओं को भी मोक्ष में जाना है, और उनको पता है कि मोक्ष यहां से मिलेगा। तो सभी देवी देवताओं की हम पे बहुत कृपा है। तो कभी कोई महात्माओं को कुछ तकलीफ भी हुई तो हम वो देवी देवता को फोन करके बोल देते हैं कि भाई उनको थोड़ा हेल्प करना, तो मेरी बात भी सुन लेते हैं। फिर आगे क्या बताया, तो आपको अभी क्या करने का, आप अभी शुद्धात्मा हो गए, तो कि आपको जो पद की प्राप्ति हुई, आपको जो मोक्ष का अभी ये वीजा मिल गया, वो प्राप्ति करने के लिए देवी देवता सब उनकी झंखना है, उनकी भावना है, और आप मेरी 5 आज्ञा में रहते हैं, और ये सभी देवी देवता मुझ पे है, और आप 5 आज्ञा में रहते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी आज्ञा में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर भी सभी देवी देवताओं का राजीपा रहता है। तो अभी आपको क्या करने का रहा, तो कि आपको ऐसा रास्ते में मंदिर आया या देवी या देवता के साथ हनुमान जी का, माता जी का मंदिर है, तो विनय से हाथ जोड़ के नमस्कार करने का। मीन्स आपको देवी देवताओं का विनय करने का, और आराधना दादा की करने की, दादा भगवान की, मीन्स भीतर बैठे हुए दादा भगवान। ये खरे साहब स्पष्टता हो गई आपको? ठीक ठीक ठीक। मगर आप ऐसा मत सोचना कि कोई देवी देवता की भक्ति करता है वो गलत है कि सही है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। मगर जो दादाजी की बात समझ में आए, तो अभी महात्माओं को देवी देवता की आराधना की जरूरत नहीं है।
आराधना अपने स्वरूप की है, मगर विनय तो कहीं गए, मूर्ति रखी है तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर देने का। बिल्कुल। दादा भगवान, मानो कोई महात्मा के घर पे सत्यांग की कथा हो रही है और दादाजी वहां जाने का हुआ, तो दादाजी विनय पूरा करेंगे, 2 हाथ जोड़ के नीचे झुककर नमस्कार करेंगे, विनय पूरा करेंगे। और बाद में सत्संग में कोई प्रश्न करेगा कि ये सत्यनारायण करके भगवान के, सत्यानारायण के कौन से भगवान है, तो दादा भगवान क्या बताएंगे कि सत्यानारायण नाम के कोई भगवान ही नहीं है। समझ में? अभी बाहर का कोई आदमी तो सोचेगा उस दिन तो दादा ने इतना विनय से नमस्कार किया था, तो क्या तो व्यवहार में विनय होना चाहिए, तो विनय रखा था। अभी ये तो एक समझने के लिए कि सत्यानारायण की कथा है तो उसमें कुछ कथा जैसा तो कुछ होगा ही नहीं, सब आएगा, अभी कलावती ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कि प्रसाद का विनय किया, ऐसा हो गया, फिर कृष्ण कथा के प्रसाद का विनय किया, सब वापिस आ गया, ऐसा ही सब आता रहेगा। और ये माता जी है, वो सब है, वो सब प्राकृत देवी हुए, प्राकृत शक्ति। तो प्राकृत शक्ति है तो उनका हम विनय करते हैं तो हमारी प्रकृति सहज होती जाती है। क्या नहीं, ये क्या यहाँ पे अभी थोड़ा प्रश्न थोड़ा मेरा आता है हाँ। कि ये जो सहज होती है ना प्रकृति, हाँ, तो इसमें मुझे थोड़ा द्वंद्व सा लगता है कि जब हम एक बार सुपरलेटिव डिग्री लेकर के बैठ गए, जैसे पीएचडी कर ली अपन ने, तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन करने की जरूरत पड़े आपको। ये सब ऐसा नहीं है, आप शुद्धात्मा अच्छा। हो गए, हम्म। बराबर, मगर ये खरे खरे बराबर। हैं, ये सुरेश जी है, अभी सहज हुए हैं, नॉर्मल नहीं हुए अभी भी सहज। जैसे संजोग आते हैं, संजोग के हिसाब से अप डाउन आता ही रहता है, एलिवेट डिप्रेस होते ही नहीं रहते नहीं, हैं। मगर उसमें वो एडजस्ट होते रहता है, वो एडजस्ट तो रहता ही होता रहता है सुरेश भाई। हाँ, तो अभी तो जब ये एक क्या बार है, अपने को इसलिए बता ज्ञान रहा हूं, मिल गया, इसलिए तो बता रहा हूं, आप और भक्ति इतनी नहीं बड़ी करते डिग्री हैं। मिल गई। मेरा कहने का, आप भक्ति नहीं करते, सुरेश भाई भक्ति करते हैं। अच्छा अच्छा। और सुरेश भाई को जागृति में है कि मुझे नॉर्मल होने का, इसलिए मैं माता जी की भक्ति कर रहा हूं। बराबर जगत के बराबर लोग संसारिक दुखों के लिए भक्ति करते हैं बराबर बराबर। कि ये लड़की की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, लड़का बिजनेस में सेट हो जाए, ये बीमारी है तो उसमें ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो। और हम बाद में समझते हैं मोक्ष कि जाने के लिए प्राकृतिक देवी करे। है, प्राकृतिक शक्ति है, और उनकी भजना ठीक ठीक। करने से हमारी प्रकृति सहज होगी। तो ये समझ बराबर। के साथ सुरेश जी भक्ति करते हैं। ठीक ठीक। समझे? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाहर से नहीं सब नहीं, सही मैं क्या, लगेगा, नहीं नहीं, बाहर मेरे क्या से कभी कभी सोचता था मैं कि दादाजी को 14 लोक का नाथ कहा है। मैंने एक बहुत बड़ी डिग्री कह दी है, राम को भी नहीं बोला, कृष्ण को नहीं बोला, कोई देवी देवताओं को 14 लोक का नाथ नहीं कहा है, हाँ, नहीं बोला। दर्शाया भी नहीं कहीं कोई भी ग्रंथों में। हाँ, कोई ग्रंथ दूसरा में भी आप नहीं 24 मिलेगा, कोई शास्त्र में भी का नहीं मिलेगा। देगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिग्री दे दी है कि स्वरूप है दादा। 24 तो मैं कभी तीर्थन कभी करना सोचता था, देगा स्वरूप है दादा है। हाँ, मैंने बहुत बड़ी डिग्री दे दी सब हाँ, बहुत दादा बड़ी को। डिग्री। तो और अब यदि देवी वो ऐसा इतनी नहीं है, बड़ी चीज को बहुत हम बड़ी भजते हैं। देवी ऐसा नहीं है, ऐसी हाँ, दशा उनकी थी। थी, और उनके कहने के अनुसार अपन लोग चलते हैं, व्यवहार करते हैं। हाँ, तो फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये देवी देवताओं को फिर पूजा करना कहाँ तक सरल है और माने करना चाहिए, और कब सूरज तक जी, ये हम क्या है, विनय उन लोगों के साथ रखना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हम्म। है कि संजोग आता है सामने से,
कहीं आप गए, आप आपके मित्र के घर पे गए, उनकी पूजा हो रही है, तो आप जाके बैठेंगे तो क्या करेंगे? आपको विनय से बराबर, वो उनका तो विनय करते तो हैं। उनका विनय तो करना पड़ेगा ना। और विनय करने का, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि देवी देवता है तो हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में हमें सहाय तो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा भी मांग सकते हैं कि मोक्ष मार्ग में हमारे जो भी अंतराय है, ऑब्स्टेकल है, उनको तोड़ देना, ऐसी शक्ति देना। तो पहले हम संसारी सब मांगते थे, वो पूरा मांगने का बदल गया, क्योंकि अभी सुरेश जी बदल गए, तो सुरेश जी की अभी उनका जो ध्येय है वो भी बदल गया, तो मांगने का भी बदल गया। अच्छा, दूसरा एक मगर मेरा क्वेश्चन था कहने का ये। मतलब क्या है कि कोई देवी देवताओं की भक्ति कर रहा है तो हमें अंदर भीतर ऐसा नहीं होना चाहिए वो गलत कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो होता नहीं है, मगर मैं सोचता था कि इतनी बड़ी डिग्री दे दी है दादा को, नहीं और नहीं, अपन सही। दादा दादा पूरे दिन करते रहते हैं, हाँ तो फिर कभी कभी कोई कहता है कि आज मंगलवार छे, आज गुरुवार छे, उपवास करवानु हतुं, आनो है, आज हनुमान जी थे, कल वो थे, कल शनिवार है, कल मैं माता क्या जी का बता रहा वार है। हूँ कि आप आपकी आपकी प्रकृति में ऐसा लेके आए हैं तो उपवास करना, और नहीं लेके आए हैं तो कुछ आपको नुकसान होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात। नहीं, नुकसान तो होता ही नहीं है, जब से दादा का ज्ञान लिया है तो नुकसान होता ही नहीं है, हमेशा फायदा ही हाँ, होता रहता है। तो ऐसा लोगों को क्या भय रहता है कि नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इतना इतना अच्छा सर, एक समझ। प्रश्न था छोटा सा, सूरज जी ये आप ज्यादा। आवरण और डिस्चार्ज बोलते हैं ना, हाँ आवरण और डिस्चार्ज कहते रहते हैं ना कि भाई आवरण से डिस्चार्ज है हमारा, तो ऐसा इसमें फर्क क्या है साहब आवरण जो दोनों है में? ने, वो दर्शन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर आवरण है। हाँ, मानो कोई अच्छा अच्छा, आदमी को ज्ञान के लोभ ऊपर। है, तो ऐसे लोभ की बात आएगी तो दूसरी दूसरे समय मान हम्म, में, विषय में, दूसरी सब जगह में बहुत जागृत होगा। मगर यहाँ वो आवरण अच्छा आ जाता है, दर्शावरण, ज्ञान आवरण। तो इसकी वजह से उनको दिखाई अच्छा नहीं देगा, और गलती होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, और बढ़ती भी जाएगी। इसको बोलते हैं आवरण। अच्छा और डिस्चार्ज क्या है अच्छा अच्छा। कि मानो वो लोभ का वो ऐसा भरा हुआ माल लेके आया है, अभी ज्ञान हो गया, आवरण टूट हम्म, गए हैं, तो जब भी लोभ के संजोग आएंगे भीतर माल फूटेगा, मगर वो जागृत रहेगा कि नहीं ये अभी नहीं। आज तक लोग, आज तक अभी अज्ञानता में सब हो गया, ठीक। अभी तो क्या, अभी तो मैं आत्म पक्ष में रहूंगा, प्रज्ञा के पक्ष में रहूंगा, पुद्गल के पक्ष में नहीं जाऊंगा। तो भीतर वो अंतस्करण में वो बुद्धि सब इतना सब बताते हैं भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा फायदा होगा, ऐसा फायदा होगा, ऐसा फायदा होगा। तो उनकी बात सुन के उसमें जो ड्रैग हो जाता है वो नहीं होता है। ठीक ठीक ठीक। वो जय होते हैं सच्चिदानंद। डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज होता है, और आवरण और दर्शन पे, ज्ञान पे आवरण। आवरण वाले को दिखाई नहीं देता है, और जिनको अच्छा, दिखाई नहीं देता है उनसे क्या होगा, गलती आपको करते दिखाई रहना। नहीं देता है और आप सीधा चलने लगेंगे तो ठोकर लगेगी। और आवरण हट गया तो दिखाई देगा, दिखाई देगा तो रास्ता, खड्डा वाला वो सब आएगा, रास्ता ऐसा आएगा। मगर उनको आवरण हट गया है तो क्या करेगा, वो खड्डे में गिरेगा नहीं। तो रास्ते में खड्डा आता है, वो सब डिस्चार्ज है। और आंखें खुली है, वो देख के वो साइड से निकल जाता है, क्योंकि वो आवरण निकल गया। ठीक है। तो ये जय ऐसे जय मोक्ष सच्चिदानंद। मार्ग में ज्ञान के ऊपर आवरण और दर्शन के ऊपर आवरण होता है।
वो ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण होने से उनका जो आत्मा का जो मूल स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, वो खुला नहीं होता है। नहीं तो वो आवरण भी एक तरह से उसका डिस्चार्ज है ना साहब? नहीं नहीं, मैंने क्या बताया, रास्ते में खड्डे हैं वो डिस्चार्ज, अच्छा। मगर आप कार लेके जाते हैं और खड्डे पे गाड़ी डालते हैं, हम्म तो वो क्या हुआ, हम्म आपका आवरण हुआ कि आपने खड्डे के साइड में से नहीं लिया, जानबूझ के किया। जानबूझ के ऐसा नहीं। हम्म आपको दिखाई देता है कि आगे इतना ये 2 फुट लंबा खड्डा है, तो आप क्या करेंगे, साइड में से लेंगे कि नहीं लेंगे? साइड में से लेंगे। मगर आवरण की वजह से नहीं दिखाई दिया तो क्या करेंगे, सीधी जाने देंगे तो खड्डे में पड़ेंगे। तो जो कंपलसरी भोगने का है वो डिस्चार्ज। अच्छा। चलो आगे पूछो। हाँ, चलो जय चलो, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। साहब। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बेन। म्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न ये है कि वो आते हैं ना स्वामी जी के वो डेली कैलेंडर में, तो उसमें मेरे को समझ नहीं आया था कि ये कुछ बोल रहे थे, पाशवी के सामने पाशवी नहीं होना, यही मानव धर्म है। पाशवी क्या होता है? पासवता अच्छा, मीन पशुता। ओ ओके, पशु, पशु के एनिमल। लक्षण, अच्छा, वो तो एनिमल समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एनिमल इंस्टिंक्ट। अच्छा, तो एक दूसरा और भी है, यह चर्म चक्षु रिलेटिव दिखाते हैं और दिव्य चक्षु रियल दिखाते हैं। हाँ, आप बराबर है। चर्म चक्षु रिलेटिव दिखाते हैं। वो क्या होते हैं? चर्म चक्षु क्या होते हैं? चर्म चक्षु ये आंख, आंख। अच्छा आंख को चक्षु बोलते हैं ना। अच्छा, मेरे को नहीं पता था। आंख को, आइस को चक्षु बोलते हैं। चक्षु अच्छा जी, नहीं बोलते चक्षुदान करने का, नेत्रदान, चक्षुदान। हाँ जी हाँ जी। तो ये चक्षु और दृष्टि है, वो भी चक्षु है। हाँ, तो फिर इसको क्या बताया कि ये चर्म चक्षु, ये चमड़े की आंख। हाँ जी तो गीता में कृष्ण भगवान ने इस तरह से बताया था, हाँ जी। ये चमड़े की आंख से तू देखेगा तो क्या दिखाई देगा? संसार, पुद्गल ही दिखाई देगा, सब पहले सब रिलेटिव दिखाई देगा। रिलेटिव, हाँ जी। और दिव्य दृष्टि से, रियल व्यू पॉइंट से देखेगा तो क्या दिखाई देगा? सब में रियल दिखाई देगा। हाँ जी। तो अर्जुन को ऐसा ही हुआ था ना। अर्जुन को एंड में जब कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, हाँ जी। और वो दिव्य चक्षु चक्षु थोड़े समय के लिए दिया था, और का उपयोग किया, तो पहले अर्जुन को जो लगता था कि ये सब मेरे भ्राता है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मेरे मित्र है, तो चर्व चक्षु से ऐसा दिखाई देता था। और दिव्य चक्षु मिले तो उनको क्या दिखाई दिया कि ये तो सारा पैकिंग है, मुझे ये जो दिखाई देता है वो सब पैकिंग है। और दिव्य चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग को भेद कर भीतर के भगवान तक, शुद्धात्मा भगवान तक पहुंच गई। हाँ जी। तो क्या हुआ कि अर्जुन को एट ए टाइम ये पैकिंग भी दिखाई दिया और भीतर के भगवान भी दिखाई दिए। हाँ जी। तो ये चर्म चक्षु से पैकिंग दिखाई दिया, हाँ और जी। दिव्य चक्षु से भीतर के भगवान दिखाई दिए। हाँ जी। तो चर्म चक्षु से देखते हैं तो रिलेटिव दिखाई देता है, और रिलेटिव देख के पैकिंग देखकर क्या होता है, भ्रांति खड़ी हो जाती है।
भ्रांति, इल्यूजन। तो भ्रांति खड़ी हो जाती है तो क्या होता है? मोह खड़ा हो जाता है। मोह, भ्रांति की वजह से मोह खड़ा हो जाता है और फिर वो ममता वो सब आ जाता है, ममत्व वो सब बाद में। तो उनको फिर क्या लगता है कि ये मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे मित्र है। ये ममता ममता खड़ी हुई तो ममता की वजह से फिर उनको विषाद खड़ा हो जाता है। और जब दिव्य चक्षु मिले तो क्या हुआ कि उनको ये सब पैकिंग तो दिखाई दिया, मगर भीतर शुद्धात्मा भगवान भी साथ में दिखाई दिए। तो भीतर का मटेरियल दिखाई दिया दिव्य चक्षु से, रियल दिखाई दिया, तो उनकी भ्रांति उड़ गई। समझा? भ्रांति चली गई तो उनकी ममता वो सब चला गया। तो उनको समझ में आ गया कि ओ मैं अभी तक मानता था कि ये तो मेरे भाई है, उनको मुझे मारना नहीं है, मगर ये तो पैकिंग है और पैकिंग तो मरा हुआ है और भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है वो अमर है, वो मरे ऐसा है ही नहीं। तो आज तक जो मरा हुआ है उनको नहीं मारने की मैं जो बात कर रहा था, तो जो मरा हुआ है उनको नहीं मारने की बात कर रहा था, वो क्या था मेरा? तो वो तो मेरा अहंकार था। अहंकार। तो ये तो मेरा अहंकार था, कैसा समझ में आया तो क्या हुआ? सब में शुद्धात्मा भगवान दिखाई दे, वो सब जो अज्ञानता सब डिजोल्व हो गई। हाँ जी। तो इस तरह से है कि ये चर्म चक्षु से देखेंगे तो रिलेटिव दिखाई देगा और ये दिव्य चक्षु से रियल दिखाई देगा। तो जो पहली आज्ञा है ना बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, वो चर्म चक्षु से देखने की है, और दूसरी आज्ञा बाय रियल व्यू पॉइंट, वो दिव्य चक्षु की बात है। तो कृष्ण भगवान ने इतनी सारी गीता समझा के जो अर्जुन को दिया था, वो तो दादा भगवान ने सिर्फ हमें सिर्फ पहली 2 आज्ञा में दे दिया है। हाँ जी। तो हम कितने पुण्यशाली है, कितने भाग्यशाली है कि बिना मेहनत हमें मिल गया। वो ऐसा वे सिंपल सेंटेंस था कि चर्म चक्षु से रिलेटिव दिखाई देता है और दिव्य चक्षु से रियल। रियल मीन्स अविनाशी, कायम का जो है शुद्ध आत्मा, वो आ गया समझ में? हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भरतान जी 2 क्वेश्चन है, कम टाइम है। कंचन भाई अपना टाइम लिमिटेड है भरतान जी। हाँ, टाइम जय हो गया। सच्चिदानंद बरकानंद जी। આપતવાણી 9 અને પેજ નંબર 302। અમે આખી જિંદગીમાં કોઈ જગ્યાએ લાચારી નહીં બતાવેલી। કાપી નાખો તોય લાચારી નહીં, લાચાર થવું એ હિંસા કહેવાય, આત્માની જબરજસ્ત હિંસા કહેવાય। અને શરીર છે ત્યાં સુધી દુઃખ થયા વગર છૂટકો નથી, પણ લાચારી તો ન જ હોવી જોઈએ, લઘુત્તમ હોવું જોઈએ। એટલે આ લઘુત્તમ હોવાની જે વાત કરે છે એ સમજાવો ને થોડું। જો તમને કોઈ પણ हिंदी વ્યક્તિ हिंदी લાચારી ક્યારે ઊભી થાય? हिंदी हिंदी हाँ, कोई भी आदमी को लाचारी कब खड़ी होती है? लाचार मीन्स वो બહુ તકલીફ તો तो जब मुझे कुछ चाहिए और मुझे कुछ नहीं, वो नहीं मिलता है, तब तो भीतर लाचारी खड़ी होती है कि अरे ये मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। क्या मैं सिंपल कि आपको 2 करोड़ रुपया कमाना है, तो आपको होगा कि अभी तो 10 लाख ही हुआ, अभी तो 10 लाख हुआ है, कभी होगा, कभी होगा, कभी होगा। तो फिर वो लाचारी खड़ी होगी। लाचारी ये वीकनेस की वजह से,
सुख की वीकनेस की वजह से खड़ी होती है। वो भी सुख में संसारी सुख की इच्छा, विनाशी सुख की इच्छा, वो नहीं मिला तो फिर लाचारी खड़ी होती है। दादा भगवान क्या बताते हैं कि हम लघुत्तम पुरुष है, तो जो लघुत्तम है वो तो सबसे छोटा है, बराबर। तो जो सबसे छोटा है उनको तो कोई चीज की इच्छा ही नहीं रहती है। फिर बड़ा होने के लिए जाए तो वो सब इच्छा खड़ी हो जाती है, मगर जो छोटा है उनको तो क्या है। तो इतने छोटे, इतने लघुत्तम पद में रहते थे कि उनको संसार की कोई भी चीज की इच्छा नहीं थी। तो क्या बताया कि प्राप्त को भोगो और अप्राप्त की चिंता मत करो। एक बैलेंसिंग वो दे दिया हम महात्माओं के लिए कि हमें जो प्राप्त सुख है उनको एंजॉय करो, तो फाइल नंबर 1 उनको एंजॉय करेंगे, मगर आपको कभी भी अप्राप्त की वो चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, क्या करूं तो मिलेगा, किसको पकड़ूंगा तो मिलेगा, किसकी कृपा से मिलेगा। तो ये सब लाचारी होगी। એટલે સંસારની કોઈ બાબતોમાં લાચારી હોવી ના જોઈએ। हाँ, संसार की कोई भी चीज में, फिर वो कुछ भी है, खाने पीने का है या मान संबंधी है, लक्ष्मी संबंधी है, विषय संबंधी है। એટલે કોઈ પણ વીકનેસ। कहीं तो क्या है, विषय संबंधी है उसमें लाचारी ज्यादा होती है, फिर लक्ष्मी संबंधी लाचारी खड़ी हो जाती है, मान संबंधी भी मान की भी लालच खड़ी हो जाती है। तो लाचारी खड़ी हुई मीन्स मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो गया है। बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। अब टाइम हो गया है, अब भरत जी तो हमको एक्सपीरियंस लेगा। हाँ। बाद में आपका एक्सपीरियंस सुनेगा दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोलो। अनुभव की यात्रा आगे लेते हुए इनके परिवार से उनके ससुर जी आई बिलीव आए थे, उनकी सास भी आ गई। अभी ये जो आ रहे हैं वो दोनों का अनुभव वो बंद ही नहीं कर पाते थे, और उनके लिए तो ऐसा लगता था कि वो बोलते जाए और अंदर से हमारा उत्साह और भी बढ़ता जाता था। तो आज देखते हैं प्रीति बहन रांका जी क्या बोलते हैं। पधारिए प्रीति जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सभी आपदा पुत्र और महात्माओं के मेरे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और एक बात ये क्लियर कर रही हूँ कि रविंद्र जी रांका मेरे पापा है। मुझे लगा ही पहले मुझे लगा था आपने वो बताया ना, ठीक है वेरी गुड। ओके। तो गरिमा जी आपकी हाँ भाभी वो जी। थोड़ा, हाँ वो गरिमा भाभी मेरे भाभी है, वो थोड़ा डेट आगे पीछे कर दिए, मैंने नाम चेंज करवाया था। नो प्रॉब्लम यस। ओके, आज मैं आप सभी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है कि अपने दादा से जो भी शक्तियाँ मांगते हैं, फिर वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, दादा हमेशा अपने को देते ही है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं कई बार। पहले मैं अपने आप को बहुत अंडर डेवलप समझती थी, इतना बोलने में पीछे रहती थी, मीन्स अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं समझती थी। पापा को, सबको मेरा बहुत टेंशन रहता था कि ये आगे जाके क्या करेगी, पर्सनल लाइफ में भी, फिर कहीं कॉलेज वॉलेज जाए, कहीं फंस ना जाए, कुछ हो ना जाए इसके साथ, ऐसा टेंशन रहता था।
तो हमेशा मैं दादा भगवान से शक्तियाँ मांगती थी कि ऐसा ना हो, मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं, कहीं पे भी पीछे ना रहूं, फिर वो कोई भी जगह क्यों ना हो। पापा का भी हमेशा फुल सपोर्ट रहता था, वो बैकअप करते रहते थे। तो मेरे को इतनी शक्तियाँ मिली कि अभी लास्ट 5 इयर्स से मैं अपना खुद का बुटीक चलाती हूँ और यानी कि इतना सक्सेसफुली चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल्स नहीं आती, और आती भी है तो वो अपने दादा से शक्तियाँ मांगते तो तुरंत मिल जाती है। यानी कि मीन्स ऐसे पर्सनल पूरा बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा मेरे को भी लगता है और कितने लोग जो मेरे नियर टच में हैं उनको भी लगता है कि इसमें बहुत चेंज आया है। और ये सिर्फ मैंने दादा से शक्तियाँ मांगने के बाद ही आया है, उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। यानी कि और सेकंड ये है कि ऐसे मेरे लाइफ में 2 बार ऐसा हुआ कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मेरे को क्या करना चाहिए, डिसीजन मेरे को ही लेना है, कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, क्या करना है वो भी मेरे को ही डिसाइड करना था। तभी भी मैंने दादा उनको प्रीति जी एक मिनट प्रीति जी एक मिनट, आप है ना अपना वीडियो बंद कर दीजिए ना, हाँ, आपकी आवाज कटती है थोड़ी। ओके, वीडियो ठीक है, मैं यहाँ से बंद करता हूँ, नहीं तो आप फिर चालू करिएगा। ओके नाउ। हाँ हो गया। हाँ ओके, जहाँ से स्टॉप किया वैसे ही कंटिन्यू करो। हाँ राइट। ओके, मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस ये था कि लाइफ में मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मेरे को डिसीजन लेना है और वो पूरी लाइफ को लेकर डिसीजन लेना है। तो उसमें भी दादा भगवान ने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने उनको हाजिर रख के हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरा डिसीजन राइट किया। यानी कि एक बार मेरी एंगेजमेंट को लेकर था जिसमें मैं कंफ्यूज थी, एक्चुअली मैं वहाँ पे मेरे को एंगेजमेंट में ही लगा कि मैं वहाँ पर सेट नहीं हो पाऊँगी, ये परफेक्ट नहीं है मेरे लिए, और मेरे को वो डिसीजन लेना था कि मेरे को मना करना था। और हम लोग जैन मारवाड़ी बैकग्राउंड में से, तो एंगेजमेंट टूटना यानी कि बहुत बड़ी बात कहते हैं, तो यानी कि डिसीजन लेना सब कुछ सोच के लेना पड़ता था। फिर भी मैंने तुरंत लिया, दादा भगवान को हाजिर करके मैं क्या करूं, लूं कि ना लूं ऐसे करके। तो फिर उन्होंने यानी कि मेरे को डायरेक्शन दिया और वो मैंने फिर फॉलो किया, और बाद में रियलाइज हुआ कि जो किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा किया, वरना मेरी पूरी लाइफ मीन्स क्या पता क्या होती। वैसे मेरे को बहुत अच्छे यानी कि एक्सपीरियंस हुए दादा भगवान के। अभी मेरी पूरी लाइफ यानी कि एकदम चेंज है, यानी कि अभी जो मेरी शादी होके भी 2.5 ईयर हो गए, जो यानी कि वो डिसीजन मैंने जो पहले लिया था वो काफ़ी यानी कि मेरे को इससे अभी रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ। और सेकंड डिसीजन जब मैंने किससे शादी करनी है वो लिया, वो भी यानी कि एकदम सक्सेसफुल गया। और इसमें मेरे पापा का, दादा भगवान का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। पापा ने भी कभी मेरे को यानी कि बहुत बैकअप किया, वो हमेशा पुशअप करते थे। ये बुटीक खोलने के लिए भी उन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि भाई ये करो, अपने को लाइफ में कैपेबल होने का, भले सब कुछ अच्छा है, फैमिली सबकी अच्छी है, लेकिन फिर भी खुद को इंडिपेंडेंट रहना है, और हमारे में जॉब इतना अलाउ नहीं करते। तो यानी कि उनका हमेशा यही कहना रहता था कि आप कुछ ऐसा काम करो कि आप फ्री रह के घर पे रह के काम कर सको, एंड कभी ना करना चाहो तो भी ना करो। तो इसके लिए भी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, एंड उनका आशीर्वाद, दादा भगवान का आशीर्वाद से बहुत अच्छा डेवलप हो गया, एंड अभी सब सेट हो गया है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड बस मैं ये 2 ही कहना चाहती हूँ कि अपने दादा भगवान से जो भी शक्तियाँ मांगते हैं वो अपने को हमेशा हाजिर होके देते ही है, फिर वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक में भी हमेशा मैं शादी के पहले तो एवरी थर्सडे को पार्श्वनाथ हॉल में सत्संग अटेंड करती थी पापा मम्मी के साथ।
तो उसमें भी अभी काफी ऐसे इतना सत्संग सुना हुआ है कि अभी मेरे को बहुत सी बातें याद आती है। अभी जो लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ कहता है, बुरा लगता है, तो तुरंत कुछ ना कुछ उसके सामने याद आ जाता है, सत्संग का कुछ भी, और बाहर भले ना दिखे लेकिन मन में समाधान हो जाता है। दीपिका जी, बहुत बढ़िया। आपने ये जो पहले तो आपके माता पिता का तो कुछ बोल नहीं सकते, उनसे तो आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ तो मिला है। आपके लिए डरते थे कि इनका क्या होगा, लेकिन आपने दादा भगवान को पकड़ के रखा। और ये जो आपने बताया है ना कि अगर कोई सांसारिक कठिनाइयां है या अध्यात्म में कोई परिस्थिति है, तो दादा से ये दोनों परिस्थिति का समाधान मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना निश्चय की बात करते हैं और व्यवहार का हम कुछ नहीं कर सकते। और दादा ने ये जो सब साधन दिए हैं, वो सब साधन व्यवहार का समाधान लाता है। और ऐसे बताया भी है कि अगर व्यवहार का समाधान नहीं आता है तो आप निश्चय में क्या प्रगति करोगे। इसीलिए व्यवहार का समाधान जो दादा ने बहुत स्पष्टता से दिया है और आज्ञा भी जो दी है वो गजब की दी है कि जिस तरह से हमारा सभी व्यवहार का हम समाधान करके आगे बढ़े। और आपका ये जो दो अनुभव है, एक तो ये बुटीक वाला जो बताया, और वहाँ जो कोई परेशानियां तकलीफें आती है तो आप दादा को याद करते हैं। दादा ने कहा मुझे याद करने वाले बहुत कम है, लोगों को और लोगों को याद करते हैं, और गलती से भी अगर मुझे याद कर दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हाजिर होना पड़ता है क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाए और मैंने ना आऊं, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वही मेरा स्वरूप है, वही उनका कल्याण भावना है उनकी। तो बोले आप याद करो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि हमें दादा याद नहीं आते और सब कुछ याद आता है। ये विडंबना है हमारी। लेकिन आपको ये नहीं हुआ, आपने हर बार दादा की क्या उसको क्या बोलते हैं, साकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जंजीर खींची। हाँ, और वो तुरंत हाजिर हुए। वो तो उन्होंने कहा है कि मुझे याद करो मैं हाजिर होता हूँ। तो कहते जंजीर खींच दी तो क्या होगा, वो प्रत्यक्ष सीधे साक्षात हाजिर हो जाएंगे। और आपकी ये जो जीवन की परिस्थिति में आपको जो निर्णय लेना था उसके लिए जो दादा भगवान को याद किया और दादा भगवान ने आपको गाइड किया, डायरेक्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये दादा का स्वरूप यूनिवर्सल है, ब्रह्मांडी है, उसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बस हमारा जो टोटल सरेंडर जो है, समर्पण भाव वगैरह आप याद कैसे करेंगे, शक्ति कैसे मांगेंगे। तो आपकी ये बहुत बड़ी चाबी आपने दी क्योंकि आपने इसका उपयोग करके आपने उसका अनुभव किया है। तो हमारी सभी की आपके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करो। धन्यवाद। बगैर बोले आप बहुत कुछ बोल गए। हाँ। लेकिन सो वेरी गुड। अभी पहले मेरे पापा का फुल सपोर्ट रहता था, अभी 2.5 years से मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहता है। तो उनका नाम भावेश जी है? भावेश जैन है, राइट। अच्छा, तो क्या बात है, ये तो आपकी सब भावनाएं पूरी करते हैं, ये तो अच्छा है। हाँ, अभी इनडायरेक्टली पापा का रहता है, डायरेक्टली इनका रहता है। नहीं, वो तो सही है। ये तो हाँ। क्योंकि आप ऐसे रहते हैं ना दादा के ज्ञान से, तो वो भी बंधे जाते हैं। उनका भी ऐसे ज्ञान में भी फुल सपोर्ट, कभी भी मैं बोलूं सत्संग में जाना है। अरे वो आ गए, दर्शन हो गए। जय सच्चिदानंद भाभी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एग्जाम्पल। जय सच्चिदानंद। संसार के दो पहिए अगर ठीक से चलते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप दोनों साथ में हैं तो पूरे आशीर्वाद, और सभी महात्मा भी आप तो सब आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद प्रीति में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और आपका श्रद्धा दादा ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। आपको तो अभी बहुत जाने का है तो दादा आपको आपका मंजिल पे लेके जाएगा। सही बात है, धन्यवाद। अभी आप भरतान जी का एक्सपीरियंस होने के बाद में आप ठहरिए तो बाद में त्रिमंत्र उसके साथ बोलना का। हाँ भरतान जी। ओके, हाँ 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 ठीक है। तो साथ में कौन है? भाभी जी के साथ में कौन है? ये मेरे पापा जी हैं, मम्मी जी हैं और क्या मेरी बात है? sister। आपका नाम, श्री का नाम, शुभ नाम? कनकराज जी बोलो नाम। कनकराज जैन है। कनकराज कनकराज। कनकराज जैन। ओके। और मम्मी जी का नाम? गुणवंती। ये रे। अरे वाह, जय सच्चिदानंद। समझ गया। और कौन थे पांचवें? ये मेरी बेबी है खुशबू। अरे वाह, जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। भरत आनंद जी का अनुभव सुनकर हम त्रिमंत्र साथ बोलेंगे बाद में। हाँ हाँ। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।